Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So in this video, I'm going to deal with the section A question from the F8 Kaplan kit. So if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. So now you can clear your doubt from me on Instagram, Telegram, Facebook ID, wherever you feel easy, and link of the ID is given in the description box. So okay, before coming to starting this video, I would like to say कि in audit there will be 70 marks for the constructed response question, and there will be MTQ. Like in our other paper there will be 3 MTQ having 5 question each of 2 marks, but there will be no MCQ. Okay, so be prepared for that. You must have a good typing skills. So now I'm going to deal with the section A question, and the first question is which of the following statement is true in relation to the fluid company being a new audit client of Woodwind and Co. Sorry. I mean the question was this. Variant company. Okay. So which of the following is a least significant audit risks to be considered when planning the audit of variant company? So let's read out the scenario. It is the 1st July 20x5 and you're planning to audit the variant company for the year ending 31st July 20x5. So that is very important. Okay. So be careful. Variant company is new audit client which operates in the oil and gas exploration industry. Again here the company is auditing company is going to audit for a new client. It's not a existing clients. So be careful with this line as well. ठीक है, यहाँ पे नया नया रिक्स होगा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट में करते वक्त ना हो. सो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को लाइक क्लाइंट का जो इंटिटी को जिसको हम लोग लाइक ऑडिट करने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड करना होगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट एंड द इंडस्ट्री इन विच इट्स ऑपरेट. सो यहाँ पे ये कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री विच इज़ वेरी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि नहीं. सो इंडस्ट्री भी देखना होगा. ओके. Company wishing to operate in this industry require a license which is valid for 20 years. License authority take into account public health and safety, protections of environment, protection of biological resources when granting license. So means they can't get the license before without considering this account into factor. If they breach, they won't get the license. Variant company activity are geographically spread across 3 continents in 35 locations. Means company is operating in the other continent and locations as well. So variant company has been in existence for 30 years and has grown its revenue at an average of 12% per annum. This is in line with the industry average. Means industry average revenue has been increased by 12%. During a planning meeting with the finance director, you were informed that forecast PBT of for this financial year is 9.5 million and for the previous year was 6 million. Based on the revenue of 124 million, 20x4 revenue was 100 million. It means in actually the variant company revenue has been increased by 24%, right? Now you have completed the audit strategy and risk assessment sections. Identify the following areas of significant risks of material misstatement. So overstatement of receivable due to long outstanding debt. Okay. Misstatement in the intangible asset due to incorrect amortizations. Overstatement of non-current assets due to impairment of explorations area which have been commissioned. Okay, so overstatement of inventory due to the inherent difficulty of establishing the quantity of oil and gas reserve. Okay, so now question is asking which of the following 4 option is the least significant audit risks. Okay, so while प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट, व्हेन मतलब प्लानिंग स्टेज जब है ऑडिट का उस टाइम कौन सा लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क है. So first is non-compliance with the laws and regulations. Obviously, as the company is operating in the oil and industry, which is very highly regulated industry, so यहाँ पे non-compliance के साथ अगर like breach किया, they might shut down. मतलब ऐसा situation आ जाएगा कि shut down करना पड़ जाए. So obviously this gonna be the like significant audit risk, and question is asking the least one.
understatement of trade payables. So in the scenario we won't find any kind of the information related to trade payables. So let's keep this option aside, like ये एक आंसर हो सकता है क्या क्या. बाकी ऑप्शन देखते हैं. एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी. ओके, सो कंपनी को लाइसेंस कब मिलेगा? ये जब लाइसेंस अथॉरिटीज लाइसेंस ग्रांट करते वक्त ये सब चीज़ को फैक्टर को काउंट करती है. अगर कंपनी ने ब्रीच किया इनमें से कोई भी एक फैक्टर लाइक, तो व्हाट हैपन, उनको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. सो ये भी एक लाइक सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क है. फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, समवेयर इन द सिनारियो मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइक वो कहीं और जियोग्राफिकली इरा विदिन कंपनी एक्टिविटी आर जियोग्राफिकली स्प्रेड अक्रॉस द थ्री कंटिनेंट्स. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिस्क भी आ सकता है. सो इट मीन्स आवर बी इज करेक्ट आंसर. ओके, 52. Which two of the following are appropriate response to address the increased detection risk due to a variant company being a new audit client? So एक चीज़ याद रखिए, detection risk is only the risk which are under the control of the auditor. बाकी inherent risk, आपका control risk, it is influenced by the entity. ठीक है? Okay. इसमें से दो ऑप्शन हम लोग को चूज करना है. So one is extended control testing should be performed. This is talking about the control और detection risk में कंट्रोल का कोई रोल ही नहीं है. So this is not an appropriate answer. Obtain an understanding of the variant company. हालांकि मैंने at the start of the video जब सिनेरियो पढ़ रही थी तभी कहा कि like in case of a new audit client, auditor need to understand the entity, its environment and the industry in which it's operate. ठीक है, so ये एक ऑप्शन बनता है हमारा appropriate response. Consideration should be given to relying on the work of independent expert. ये हालांकि रिव्यू फेज में होता है. सो वी आर एट नाउ प्लानिंग फेज. ठीक है. रिड्यूस रिलायंस ऑन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगेन ये कंट्रोल की बात करिए. सो इट्स नॉट ए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. कॉन्टैक्ट द प्रीवियस ऑडिटर टू रिक्वेस्ट वर्किंग पेपर. या दिस कुड बी आवर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. अब अर्लियर ऑडिटर को एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है. सो यहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट करने पे या कोई वर्किंग पेपर लेने से ये एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स सजेस्ट कर रहा है. ठीक है. ओके, 53. Which of the following is the least appropriate materiality level to be used in the audit of a variant company? So before dealing with this question, I must say you guys to remember this materiality by size is fixed amount. इसको याद करना ही पड़ेगा. रेवेन्यू के लिए 0.5 to 1%, पीवीटी के लिए 5 to 10%, टोटल एसेट के लिए 1 to 2%. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू दिया हुआ था, राइट. ओके, सो रेवेन्यू दिया हुआ था. ये मैंने लोअर लेवल, ये लोअर लेवल था एंड दिस वन इज हायर. ओके, सो ये लोअर है, ये हायर लेवल है. ओके, सो यहाँ पे हमारा पीबीटी नहीं, रेवेन्यू 124 मिलियन है. तो 0.5% ऑफ 124 मिलियन, तो 0.62. सिमिलरली 1% ऑफ 124 मिलियन. पीबीटी का भी वैसे निकाला मैंने, 5% ऑफ 9.5 मिलियन एंड 10% ऑफ 9.5 मिलियन. हम लोग कंसिडर करेंगे लोअर को ही. ठीक है. लोअर आपका इन चारों ऑप्शन अगर देखा जाए तो लास्ट का 2 ऑब्वियसली आपका क्लोजेस है लोअर वाले से, है कि नहीं. जो फारदेस्ट सबसे कौन है, 1.5 मिलियन. सो दिस शुड बी लीस्ट एप्रोप्रिएट मैटेरियलिटी लेवल. ठीक है, ऐसे देखेंगे. ओके, नाउ 54. सिलेक्ट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट विद द मूवमेंट इन द रेवेन्यू. अब इंडस्ट्री एवरेज का रेवेन्यू 12% से इंक्रीज हुआ है, बट वेरिएंट कंपनी का रेवेन्यू इज इंक्रीज बाय 24%. ये क्या ऑडिट रिस्क सजेस्ट करता है? देयर माइट बी ओवर स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू. हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का सेल्स को भी इसी ईयर में सेल्स में ऐड कर दिया हो सकता है ना. सो नाउ वी हैव टू कंसिडर दिस 3 ऑप्शन वेदर इट्स कंसिस्टेंट इन द मूवमेंट ऑफ द रेवेन्यू और नॉट. ठीक है. कट ऑफ रेवेन्यू इज एन ऑडिट रिस्क. अब कट ऑफ हमारा क्या है, मतलब आपका कट ऑफ यहाँ पे मतलब लास्ट ऑफ द एंडिंग पॉइंट. आपका यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज 12% था, बट आपका एक्चुअल में कितना से इंक्रीज हुआ, 24% से. सो इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑडिट रिस्क. यहाँ पे ऑडिट रिस्क को लाइक हम लोग एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है. कंप्लीटनेस ऑफ द रेवेन्यू इज एन ऑडिट रिस्क. कंप्लीटनेस आपका जनरली अंडर स्टेटमेंट के केस में आता है. हमारा तो रेवेन्यू क्या हुआ है, ओवर स्टेटमेंट. सो
अब कंप्लीटनेस की बात आती है, जहाँ पे अंडर स्टेटमेंट हो वहाँ ये बताता है कंप्लीटनेस के सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे तो बट हमारे केस में ओवर स्टेटमेंट हुआ है, मीन्स हम लोग ने ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, ज़्यादा ही सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है, सो दिस इज नॉट ए कंसिस्टेंट। ऑकरेंस ऑफ रेवेन्यू इज एन ऑडिट रिस्क। अब ऑकरेंस मीन्स आपको कि ये एक्चुअल में ऑकर हुआ है कि नहीं, ये 24% जो इंक्रीज हुआ है सेल्स, इट्स एक्चुअली हैज बीन ऑकर और नॉट, फिडुशियरी सेल्स तो नहीं है, तो ये चीज़ भी हमारा कंसिस्टेंट है ऑडिट रिस्क से। ठीक है, ओके। सो 55 मैच द ऑडिट रिस्क विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स द ऑडिटर ऑफ वेरियंट कंपनी शुड टेक। फर्स्ट इज रिसीवेबल। सो ऊपर हम लोग को कह रहा है कि रिसीवेबल हैज़ बीन ओवर स्टेटमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू टू लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट, यहाँ पे हमारा रिसीवेबल क्या हो रहा है, ओवर स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या होगा, रिसीवेबल से रिलेटेड ओनली बी एंड ई, एक दो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से एक चूज करना पड़ेगा। अब बी को देखते हैं, कॉन्टैक्ट ए सैंपल ऑफ कस्टमर टू कंफर्म द ईयर इन बैलेंस। ये ईयर इन बैलेंस से कंफर्म करने से इट विल नॉट मेक ए श्योरिटी कि हमारा पेमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोग ने एलिमिनेट किया और ई को एज ए आंसर लिया, क्योंकि कस्टमर से बात करेंगे, उसका सिचुएशन, उसका डिस्प्यूट एक्चुअली में पे करेगा कि नहीं अमाउंट, वो पता चलेगा ना। सो दैट्स वाई ये हमारा एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हुआ। अब नॉन करेंट एसेट की बात करें, नॉन करेंट एसेट में क्या कहा ऊपर में, इन द सिनारियो इट दे टोल्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एरिया विच हैव बीन डिकमीशन्ड, है कि नहीं। अब इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट वुड नेसेसिटेट एन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हमारे पास एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसके रिगार्डिंग आपका ए है या फिर एक जी है। तो हालांकि फिजिकली हम लोग ऑडिटर को फिजिकली इंस्पेक्ट करने के लिए भेज दे सैंपल ऑफ एक्सप्लोरेशन एरिया, इट कुड नॉट बी पॉसिबल, इट विल नॉट बी एन इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर। So that's why review the depreciation charge for the adequacy could be the most appropriate response. ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट की बात करें, इंटेंजिबल एसेट के केस में कहा गया है कि इट्स ओवर स्टेटेड। अब क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट एमोटाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा ऑडिट रिस्पॉन्स क्या होगा कि टू रिकैलकुलेट और कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एमोटाइजेशन। ठीक है, so I hope you guys like this video. In next video we will be doing the woodwind company, so tab tak ke liye stay tuned with my channel and don't forget to hit the like button and bell icon. Thank you.